Hello students, welcome to English class. Students, in the previous two classes we have been doing our topic speech, and till now I have explained you what speech is and what are the important points to be considered while writing and also while delivering speech, right? And I have also explained you the format and the solved example. And in yesterday's class I have given you three questions for your homework. I hope you all have done your homework. And now in today's class, I will be explaining you one more solved example, and I'll be giving you few more questions for self-assessment. Okay, few questions for homework. So this one I have explained you yesterday, right? So today I'll be explaining you one more written speech, solved speech, and after that I will explain you few questions for homework. So question here is, you are Ankita. You have been asked to deliver a speech at a function in your school on the topic, what do children expect from their teacher? Draft speech. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको किसी फंक्शन में, ठीक है, किसी फंक्शन में, अपने स्कूल के किसी फंक्शन में स्पीच देना है जिसका टॉपिक है कि बच्चे अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्टूडेंट. पहले आप टॉपिक लिखेंगे, व्हाट डू चिल्ड्रन एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीचर. ओके, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर्मल एड्रेस होगा, दैट इज जो वो सारे लोग जो प्रेजेंट हैं उन्हें आप एड्रेस करेंगे. सो इट विल बी लाइक, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज विद यू अबाउट चिल्ड्रंस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्कूल. तो इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, सभी को वेलकम करेंगे और अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ से आप एक्चुअली टॉपिक के बारे में लिखेंगे. So let's just go through it once. Children have high expectations from their teachers. First of all, they want their teachers to wear good dresses and look smart. When teachers enter classrooms, they should have smiling, bright faces. The stern-looking faces of teachers take away children's enthusiasm to study. Teachers who are cheerful win instant admiration of their students. They are able to create the right kind of atmosphere for studies. Then, children expect their teachers not to give them corporal punishment. Corporal punishment के बारे में कल की क्लास में एक स्पीच मैंने आपको बताया था. They want them to use gentlemanly ways to correct them. They do not like too much homework. Naturally, they like those teachers who give them light homework and do not spoil their evenings. Moreover, they expect them to be gentle and polite in their behavior. They dislike rudeness in their teachers. In short, they expect their teachers to be cheerful, gentle, and men of understanding. Thank you. So ये है स्पीच जहाँ पे एक चाइल्ड अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहा है अपने टीचर से. ठीक है, इट मे वेरी फ्रॉम चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन, दैट इज नॉट अ बिग डील. And today I have given you three questions for homework. That is, ये first one is homework one, second one was drive safe, reach safe, and third one was air pollution. And today I will be giving you three more questions for your homework. And with this, we will be completing our topic, speech writing. Okay. So question number 4 for the homework today is 1, and in total the fourth question for your homework is how to get good sleep. Okay. You have to write a speech on the topic how to get good sleep. Hints here are: sleep not difficult to get, मतलब नींद आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात भी नहीं है. फिजिकल एक्सरसाइज आर हेल्पफुल, कि हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे. अवॉइड स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, अगर हम आफ्टरनून में नहीं सोएंगे तो हमें रात में ऑब्वियसली जल्दी नींद आ सकती है. अवॉइड अननेसेसरी टेंशन, हम ज्यादा टेंशन ना लेंगे, दिमाग को माइंड काम रखेंगे तो भी नींद जल्दी आ जाएगी. हेल्थी ड्रिंक्स, जो हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं वो भी हम ले सकते हैं अच्छी नींद आने के लिए. सो ये एक होमवर्क है आपका. सेकेंड होमवर्क इज
Write a speech for the morning assembly of your school on the topic don't be afraid of failure. ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए कि हमें हार से, जब फेलियर से हमें हार नहीं मानिए, हमें हार का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि हम जो भी करते हैं एक बार में हम सक्सेसफुल रहें, राइट। फेलियर होगा तभी सक्सेस का मजा आएगा, है ना। तो इसी के ऊपर आपको लिखना है कि हमें फेलियर से डरना नहीं चाहिए। Means क्या दिए गए हैं यहाँ पे, फेलियर द अदर साइड ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस का दूसरा साइड है फेलियर। स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, कि फेलियर ही तरक्की की सीढ़ी है। लर्न टू फेस फेलियर ब्रेवली, मतलब जब हम फेल हो जाते हैं कभी लाइफ में, किसी चीज में, किसी एग्जाम में या किसी फेज ऑफ लाइफ में, तो हमें उस फेलियर को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे फेस करना चाहिए, ना कि फेलियर को लेकर के हमें अपने आप को और डिसअपॉइंट कर देना चाहिए। नेक्स्ट, लर्न अ लेसन फ्रॉम योर फेलियर। यस, द लास्ट वन इज, हमें हमारे फेलियर से भी कुछ सीखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है हो गया छोड़ दो, फेल हो गए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। उस फेलियर से भी हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, वो सीख को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। द थर्ड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क इज, you have been asked to deliver a speech in your class on the topic the habit of reading. रिपीट ये स्पीच। अगेन क्वेश्चन है कि हमें रीडिंग, जो हम रीड करते हैं, रीडिंग चाहे वो नॉवेल्स हो, बुक्स हो, स्टोरी बुक्स हो, किसी भी तरीके की बुक हो, न्यूज़पेपर हो, ये सब को रीड करने की एक हमें हैबिट बनानी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, रीड करते रहे, जिससे कि हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, हमारी लैंग्वेज अच्छी हो और हमें हम अपडेटेड रहें, राइट। हिंट्स क्या दिए हैं यहाँ पे, the decline of reading habit in in the days of TV and the net. Yes, टीवी और इंटरनेट की वजह से जो हमारी रीड करने की हैबिट है वो बहुत हद तक छूट चुकी है। बिकॉज पहले हम न्यूज़पेपर रीड करते थे, आज हम टीवी में न्यूज़ देख लेते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, तो इस वजह से हम रीड करना छोड़ देते हैं। रीडिंग बुक्स प्लेजरेबल एंड इंस्ट्रक्टिव, अगर हम बुक्स रीड करेंगे तो हमें प्लेजर भी देगा और हमें प्रॉपर, हमारे लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्टिव भी रहेगा। Children ought to be encouraged to read good books. Now next is, हमें बच्चों को encourage करना चाहिए ताकि अच्छी बुक्स होती है, नॉवेल्स होती है, मैगजीन्स होती हैं, उन्हें वो पढ़ें। तो रीडिंग के लिए encourage बच्चों को करना चाहिए। रीडिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रीजनिंग। अब रीडिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमेजिनेशन, हमारे रीजनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हिंट के जो आपको इंक्लूड करने हैं आपकी स्पीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 टॉपिक हैं आपके होमवर्क के लिए, ये आपको करना है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक स्पीच राइटिंग। And if you get doubt anywhere while writing any of this speech, just drop me a message. Okay. Thank you, students.